This class is for class 7, third lecture of the chapter light. Already lots of concept regarding this chapter has been given, and again I would like to repeat some points. For example, the image formation by plane mirror is always what? The nature of image is virtual, and virtual images are always upright, and that is also called erect. Okay, and how the image formed, that was shown by diametrically. Okay, and later on we have discussed about spherical mirror, and spherical mirror we have two types. One is concave and other is what? Convex. So regarding concave mirror, lots of concept has been given, that is what is principal axis, what is pole, what is center of curvature, what is radius of curvature, what is focus point, and what is focal length, and rule of image formation. When light come parallel to the principal axis, it will pass through the focus, and when light pass through the focus, then it will goes parallel to the principal axis, and when light comes to the center of curvature, then it will goes in the same path. So with the help of this image formation rule, you are given image formation in concave mirror. Okay, in your book only brief concept is given. For example, in concave mirror, both type of images from, both virtual as well as what? Real images from. When virtual images from, already it was shown diagrammatically. So when the object is kept between focus and center of curvature, focus and optical pole, then the virtual image is formed behind the mirror, and the size of image is very large compared to size of our object. And in other case, when the object is kept at focus, when object is kept at center of curvature, then image will form real image always inverted. रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है. ओके, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? अपराइट और डिमिनिश्ड होता है. डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है और इमेज का साइज क्या होता है? छोटा होता है. ओके, एंड नेक्स्ट यूज ऑफ कर्व मिरर, मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स का यूजेस. थोड़ा सा और डिटेल्स बताना था कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. अब स्कूल जब खुल जाएगा, देन व्हेन आई विल रिवाइज दिस चैप्टर, देन आई विल गिव यू डिटेल्स. ऑलमोस्ट बहुत सारा डिटेल्स दिया, बहुत सारा चीज़ बुक में है भी नहीं, क्योंकि आपका अपर क्लासेस में ना ये जो रेस लाइट है, ये चैप्टर बहुत फास्टली पढ़ना है. तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लोगे तो यू विल गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर. ओके, so convex mirror make things look smaller, but you can see a lot more of the surroundings. In other words, they give you wider range of views. Some use of convex mirror are given below. As a car wings mirror, कार में जो विंग्स होता है ना, सामने जो ग्लास होता है ना, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि थोड़ा सा दूर तक रेंज तक बताता है. मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर में ना जो इमेज फ्रॉम होता है, छोटा करके फ्रॉम होता है. रियल से भी जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे छोटा होता है, तो हम लोग ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं. ओके, ज़्यादा वाइड रेंज का इमेज फ्रॉम होता है. दैट्स वाई कार का जो मिरर होता है ना, दैट इज मेड बाय कॉन्वेक्स मिरर. इन सुपरमार्केट्स एंड अ बिग शॉप, टू लुक आउट फॉर द शॉपलिफ्टर, वहाँ पे भी साइड में लगा रहता है. देखना पूरा साइड कौन आ रहा है कौन जा रहा है रिफ्लेक्ट होके देख सकते हैं. ठीक है, और कहीं पे देखा था उसका, हाँ, रूट में भी कहीं पे भी हिल्स एरिया में ना ग्लास लगा रहता है. ठीक है, शिलोंग में गया था तो कोई यूनिवर्स कैंप पे गया था तो वहाँ पे भी था. मतलब दूसरा जगह से गाड़ी टर्निंग में पता चल रहा है कि सामने से कौन, दूर तक पता चल जाता है टर्निंग में कि गाड़ी आ रहा है कि नहीं. इन बसेस सो दैट the driver can view the whole bus. बस का साइड में, स्कूल बस में साइड में लगा रहता है, that is actually convex mirror.
व्हेन ऑब्जेक्ट आर केप्ट वेरी क्लोज टू कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट लुक लार्जर। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, मैंने एक बताया था वर्चुअल इमेज बड़ा साइज का इमेज फ्रॉम होता है। दिस मेक कॉन्केव मिरर यूजफुल फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशन एज सेविंग मिरर व्हाइल पुटिंग ऑन मेकअप। सेविंग मिरर मतलब ना सेव करते वक्त जो मिरर होता है वो कॉन्केव मिरर होते हैं, तो थोड़ा बड़ा करके दिखता है, क्लियरली दिखता है। एज ए डेंटिस्ट मिरर फॉर एग्जामिनेशन, दांत का अंदर अगर क्या है नहीं है थोड़ा अच्छा से क्लियरली देखने के लिए, इमेज को बड़ा करके देखने के लिए दे यूज जनरली कॉन्केव मिरर। ठीक है, बड़ा इमेज फॉर्म आता है, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज क्या होता है, बड़ा इमेज होता है, दैट्स व्हाई डेंटिस्ट यूज्ड कॉन्केव मिरर। Concave mirror can also focus a parallel beam of light to a point. This property is used in solar powered objects where they reflect the heat rays of the sun so that the rays are concentrated into a smaller area. Concave mirror में फोकस में जब रेस आता है ना, फोकस में पॉइंट करता है, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, दिस इज द मैग्नीफाइंग ग्लास, एक ही पॉइंट में लाइट को फेंकता है, तो क्या होता है, हीट फोर्स से होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप कोई भी चीज जला सकते हो, जल जाएगा, आग लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट लेंस। लेंस इज ऑल्सो लाइक ए मीन्स सी, दो टाइप का लेंस होता है। अगर मिरर का दो पार्ट ऐसे लगाएंगे ना, दो पार्ट होगा, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस उल्टा करके लगाने से दोनों मिरर को ये कॉन्केव लेंस हो जाएगा, कॉन्केव लेंस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि लेंस में ना पॉलिश नहीं होता है, लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लेंस से लाइट पास होता है, पास होते वक्त लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, तब इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, लेंस भी दो टाइप का होता है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। सेम अगर लाइट ठीक है, लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, वो एक पॉइंट में फोकस करता है एंड दैट इज फोकस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ फोकस हुई है, सेम डेफिनेशन है। और जो कॉन्वेक्स लेंस में ना रियल में एक पॉइंट में मीट होता है, लाइट अगर पैरेलल में आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का, रिफ्लेक्शन के बाद एक रियल में एक पॉइंट में मीट होता है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। और लाइट जो एक पॉइंट में मीट होता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग रेज। और अगर कॉन्केव लेंस होगा तो जो पैरेलल ही आएगा वो डाइवर्ट होके जाएगा, तो पीछे की तरफ बैक करने से एक पॉइंट में मीट होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोकस पॉइंट, लेकिन वो डाइवर्जेंट रेस का वजह से होता है। ओके, so next is image formed by convex and convex lens. Let us see about convex lens. Convex, same rule, you have to apply same rule which was given in case of mirror. See, suppose we have the lens, this is called optical pole, this optical pole, this is focus point and this is center of curvature. And in case of lens, center of curvature is represented by 2f, f plus f 2f, and we have two part of mirror, तो दो फोकस होगा, एक इसके लिए होगा, एक सब इस कर्व के लिए ये फोकस है, और इस कर्व के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस कर्व के लिए और एक फोकस होगा एंड और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, सपोज ऑब्जेक्ट इज kept here, object is kept here, object is kept between focus and optical pole. When lights come parallel to the principal axis, it will pass through the focus. After refraction, पार होने के बाद फोकस से पार होता है, सेम रूल है, खाली यहाँ पे पार हो जाएगा, वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा था, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एंड ऑप्टिकल सेंटर से जब रेज जाता है ना, ऑप्टिकल सेंटर से वो आपका सेम पाथ से वापस जाता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ये एक नया रूल है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर रेस पार होगा ना तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अभी देखो यहाँ से कोई सामने अगर लुक करेगा ना तो उसको लगेगा लाइट पीछे से आ रहा है, पीछे ऐसा आ रहा है, तो इमेज यहाँ पे फ्रॉम होगा, तो दिस इज द इमेज एड्रेस बी एस, सेम एज कॉन्केव मिरर।
तो यहाँ पे इमेज फ्रॉम हो रहा है। यहाँ पे इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल है, रियल में तो काट किया नहीं, पीछे बैक करने से होगा वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, अपराइट होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो भी इमेज फ्रॉम होगा दैट इज व्हाट, सब केस में नहीं, एक केस में जब फोकस और ऑप्टिकल पुल में रखोगे तो वर्चुअल इमेज फ्रॉम होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट बा अपराइट। फिर देखो कहाँ पे रखा था, यहाँ पे टेबल दिया होगा, टेबल देखो पहला केस दिया हुआ है टेबल में, बिटवीन द लेंस एंड फोकस। बिटवीन द लेंस मतलब वही है ऑप्टिकल पुल एंड फोकस के बेस में। देखो सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, अपराइट, एनलार्ज मतलब बहुत बड़ा साइज का है, एंड वर्चुअल जो ऑलरेडी मैंने बताया थोड़ा देर पहले। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप फोकस में रखो, आप खुद कर सकते हो इसको, खुद करना, ठीक है। नेक्स्ट फोकस में रखो, देखना पैरेलल होगा रिफ्लेक्शन के बाद, तो कहीं पे भी काट नहीं करेगा। तो इमेज कहाँ फ्रॉम होगा, हाँ इनफाइनाइट में फ्रॉम होगा, लेकिन यहाँ पे नेचर लिखा है इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज, रियल, उसका कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली। क्या क्यों मीनिंग नहीं है, क्योंकि इमेज कहाँ फ्रॉम हो रहा है, इनफाइनाइट में फ्रॉम हो रहा है। नेक्स्ट है बिटवीन एफ एंड सी। एक्चुअली एफ एंड सी 2F लिखना था, लेकिन एफ एंड सी मानने से भी होगा। एक्चुअली हायर स्टडीज में इसको 2F माना जाता है, ठीक है। तो देखना कहाँ काट करते हैं, यहाँ पे रियल इमेज फ्रॉम होगा, मैग्नीफाइड होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन आप लोग खुद ट्राई करना, खुद बनाना, देखना 2 रूल अप्लाई करना। जहां पे मीट कर रहा है, मीट करेगा आपका बियॉन्ड सी का बाहर में मीट करेगा, एंड एट सी रखने से सी में फ्रॉम होगा, तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, सेम होगा। एट इन्फाइनिटी सॉरी एट बियॉन्ड सी होने से कहा होगा बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। अब हर एक केसेस को ना खुद से रूल अप्लाई करना, रूल मैंने ऑलरेडी बता दिया था, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे फ्रॉम होगा, लेकिन ट्राई टू लर्न, ठीक है। एक्सेक्ट निकाल के देखना है, टेबल याद करने का कोई फायदा नहीं है। अभी अगर याद करके मार्क्स भी ला लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अब समझ के पढ़ना, ओके। जब क्लास खुल जाएगा मैं डायग्राम बना के पूरा डिटेल्स में पढ़ा दूंगा। अभी जितना हो सके ट्राई टू क्लियर। नेक्स्ट हम लोग को जानना है कलर है ना। कलर एक्चुअली जो विजिबल कलर होता है ना, विजिबल कलर 2 टाइप का मेनली कलर होता है। एक होता है प्राइमरी कलर्स और एक होते हैं कंपोजिट कलर्स। कंपोजिट मतलब व्हाइट लाइट, जिसमें मोर देन 1 कलर होता है, ठीक है। कंपोजिट व्हाइट कलर में 7 कलर होता है। 7 कलर में कौन कौन होता है, वो उसको हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। दे आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। और ये सब कलर को ना अगर हम लोग एक प्रिज्म से पास, व्हाइट कलर को अगर प्रिज्म से पास करते तो इट्स स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स, एंड दिस phenomenon is called spectrum, okay, visible spectrum. When white light is passed through any prism, then it is splitting into 7 colors, and this phenomenon is called visible spectrum. सो मोटामोटी ब्रीफली इतना ही है। क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजो। और हाफियरली सिलेबस में मैंने 8 चैप्टर दिया था, 8 चैप्टर नहीं दूंगा, 7 चैप्टर दूंगा। सो वी हैव टू कंप्लीट अनदर 1 चैप्टर, दैट इज वाटर, एंड दैट इज वेरी इजी चैप्टर, you can do from yourself also, but I will give 1 lecture on that chapter, but try to solve the question answer of this chapter, light chapter, and try to send. And chapter 4 a little bit conceptual, try to clear the concept. Again in next class, online class, we'll discuss about chapter 4 and we'll discuss a little bit about chapter light. Okay, fine.